So welcome back to Mathematics by Rumina, and in this video today we are going to learn about part 7 of integrals. Yes, it is a part 7 beta. Basically it is going to be the last part for your class 12 syllabus. Okay, इसके अलावा मैं सब कुछ क्लियर कर चुकी हूँ और इस लास्ट पार्ट में भी हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, नथिंग एल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग आई वांट टू मेक माई सेल्फ क्लियर कि बच्चा प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने एक प्रॉपरली वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो प्लीज़ वहाँ से जाके प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेना और फिर यहाँ से आके एक बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना. ठीक है. सो प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दैट वीडियो एंड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वीडियो हो जाएगा. सो आई होप कि कोई डाउट नहीं होगा. लेट्स स्टार्ट एंड स्टडी. सबसे पहले एक होगा आपका वार्म अप क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन का भी याद करवा दो कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. ओके. सो नाउ क्वेश्चन इज 0 से 1 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स. इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, स्पेशली इसको देखकर ये याद आ रहा होगा बाय डिफ्रेंसिएशन, ये याद आएगा बाय क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री. You know there was a formula that is sin 2 theta is equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, correct? So with the help of this formula, can I just rearrange this and can I just let my x as tan theta? तो इसको लिखते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से मुझे? यहाँ से I will get sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, and this would be equals to sin inverse sin 2 theta, correct? Now sin inverse sin, that would be giving you 2 theta. इस इंटीग्रल में थीटा कहीं पर भी नहीं है, x है. So can I obtain my value of theta from here? And the value of theta from here is going to be tan inverse x. So I can simply write 2 tan inverse x for this function. That means now my integral I, let's name it as I only. So that would be equals to 0 से 1 2 tan inverse x is equal dx. Now also it's not very simple to simplify this. We have to use integration by parts because tan inverse को कोई direct integral नहीं है मेरे पास. So I will be using integration by parts. And by integration by parts I know कि algebra first है, trigonometry second है. So algebra first हो गया, trigonometry second हो गया. That's it. मतलब जो पहले आ रहा है basically. So sorry, if I was not wrong, यहाँ पे मेरे पास पहला sorry बेटा, since 2 is a constant, so I can just do one thing, that is यहाँ पे ये inverse function था and inverse मेरा first number पे था. So sorry for that. So inverse पहला और algebra second. So this algebra is going to be second and tan inverse पहला. Tan inverse x as it is. 2 का integral will be 2x minus derivative of tan inverse x, that is 1 upon 1 plus x square, and integral of 2 is going to give you 2x dx. Now if I want, can I just let 1 plus x square as t. So क्या मिलेगा, डेरिवेटिव कर दो इसका. 2x dx is equals to dt. Let's put it over here. So क्या मिल जाएगा बच्चा, 2x tan inverse x minus यहाँ से क्या आएगा मेरे पास, ये बनेगा dt and 1 plus x square would be t. So that would be simply your 2x tan inverse x minus यहाँ से क्या आएगा log t, और log t क्या है 1 plus x square. एंड फिर डायरेक्टली उठा के बस अपनी लिमिट पुट करो और आपके पास आपका आंसर ये आया. लिमिट पुट करते हैं, मैं यहाँ पे स्पेस नहीं बची है, यहाँ पे पर्पल कलर से मैं यहाँ इस कोने में सॉल्व कर रही हूँ इसको. ठीक है. सो दैट वुड बी योर 2 1. नाउ tan इनवर्स tan 45. सो 45 बचेगा खाली यहाँ पे. सो पाई बाय 4 माइनस लॉग, यहाँ पे 1 आएगा तो 1 प्लस 1 इज 2 log 2. Now 0 से मल्टीप्लाई तो 0 and minus log 1, and minus will make it plus basically. So बस इसको simplify करेंगे and this will give the answer. Not a difficult task. It was a very simple question, but हाँ a little lengthy one I would say.
ओके, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज. इधर हम कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे मैं आपको वो एक क्लेम कर दूंगी. बाकी प्रॉपर्टीज आप प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना कि प्रॉपर्टीज मैंने कैसे एक्सप्लेन की है, बिकॉज वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी गई है बाय मेकिंग अ वेरी वंडरफुल वीडियो. सो आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे कि हाँ प्रॉपर्टीज कैसे हमें यूज करनी है एंड व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज. सो नाउ वी हैव द इंटीग्रल 0 से π/2 रूट साइन एक्स upon root sin x plus root cos x dx. So if I know that there is a property which states me, sorry आज कोल्ड ज़्यादा है शायद इसलिए आवाज़ फट रही होगी, बट प्लीज़ ट्राई टू कॉपरेट एज मच एज यू कैन डू. सो 0 से a एफ एक्स डी एक्स दैट इज बेसिकली इक्वल्स टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. अगर यहाँ पे a और b होती है तो यहाँ पे a प्लस बी माइनस एक्स भी हो जाता है. सो बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कैन आई राइट, पहले इसको आई लेट कर लो और इसको 1 भी लेट कर लो. सो मेरा दूसरा आई क्या हो जाएगा, 0 से π/2 लिमिट्स रिमेन द सेम रूट साइन π/2 माइनस एक्स दैट इज बेसिकली कॉस एक्स अपॉन यहाँ पर साइन, यहाँ पे साइन हो जाता था कॉस एक्स और यहाँ पे कॉस हो जाता साइन एक्स, करेक्ट, इंटू डी एक्स. लेट दिस बी योर I2. नाउ just add I1 plus I2. So what you are going to get, 2i is equals to 0 से π/2 root sin x. Since the denominator is same, I can just simply add them. So root sin x plus cos x upon root sin x plus cos x. And if you just observe, numerator and denominator both can get cancelled out, and as they get cancelled out, what I'm left with, I'm simply left with 0 से π/2 1 dx, and that 1 is going to represent I. So I is equal to this 2 को भी नीचे ले जाओ, 1/2 π/2 because this is going to give x 0 से π/2 minus 0. So that is going to give you the final answer as π/4, and yes, this is going to be your final answer. Now the next, ये एक मॉडुलस का फंक्शन है, ये एक प्रॉपर्टी बेस्ड नहीं है, बस हाँ एक प्रॉपर्टी यहाँ से यूटिलाइज हो जाती है मेरे पास फिर भी. दैट इज अगर मेरे पास कोई ब्रेक पॉइंट होता है बेसिकली बेटा a टू c एफ एक्स डी एक्स, तो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको, a टू b एफ एक्स डी एक्स प्लस b टू c एफ एक्स डी एक्स. सॉरी, बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी कैन आई सिंपली राइट, इसका ब्रेक पॉइंट पहले ऑब्टेन कर लेते हैं. कुछ नहीं करना, x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट किया, सो x वुड बी इक्वल्स टू 5. सो आई कैन सिंपली से दैट ब्रेक पॉइंट क्या है, 5 है. सो 2 to 5. अब देखो x माइनस 5 था बेटा, अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू रखती हूँ, जस्ट सपोज 3 वैल्यू यहाँ रखी, तो 3 माइनस 5 नेगेटिव आया, तो दैट मीन्स मेरा मॉडुलस क्या होगा, नेगेटिव होगा यहाँ पर. और 5 to 8 में 6 रखते हैं, तो 6 माइनस 5 प्लस 1, तो दैट मीन्स मॉडुलस क्या है, पॉजिटिव है. ओके कुछ नहीं, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं. इस वाले माइनस को अंदर लेके जाएंगे. सो एंड इट इज गोइंग टू गिव x² अपॉन 2 प्लस 5x 2 to 5 एंड x² अपॉन 2 माइनस 5x 5 to 8. लेट्स सिंप्लीफाई इट. माइनस 25 अपॉन 2 प्लस यहाँ से कितना आएगा मेरे पास 25, ठीक है, and minus will give it plus. So 2 का square would be 4 upon 2 minus 5 into 2 is 10. Clear? Plus इसको भी simplify करना है ऐसे ही, that is 64 upon 2 minus 40 minus अब 5 को रख देंगे, so that is going to give you 25 upon 2 और यहाँ पे क्या आएगा minus minus plus, and this is going to give you 25. ओके नाउ बेटा क्या कैंसिल हो रहा है, सबसे पहली बात अगर मैं देखती हूँ, सो एक तो ये मेरा सिंप्लीफाई होगा एज योर 32. उसके अलावा यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी माइनस है. सो दिस इज सेम एलसीएम है, यहाँ पे इसको 2 कर देते हैं, सेम एलसीएम है बेटा. तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, -50/2 प्लस 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 50 प्लस 2 माइनस 10 प्लस 32 माइनस 40. तो यहाँ से कितना आया 25
यहाँ से आया मेरे पास माइनस का 25, अब कैलकुलेशन कर देते हैं सिंपल अपनी, ठीक है ना। -25 प्लस 50 दैट इज 25, 25 -10 करते हैं पहले, सो 25 - 10 इज 15, 15 + 2 17, 17 + 32 that is going to give me 49, 49 - 40 that is 9. ये आ गया बेटा मेरे पास आंसर, एंड येस इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है स्पेशली इन योर बोर्ड एग्जाम, सो जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली। मॉडुलस है, नॉर्मली बच्चे कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं इसलिए बहुत आता है। ये इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट करता है, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को भी लिया है। Now what is the concept for even and odd function? Let's understand that also. Whenever we have the same limit, just with a minus sign as a difference, so minus a to a fx dx, तो मेरे पास दो टाइप के इंटीग्रल निकलते हैं बेटा यहाँ से। वन इंटीग्रल इज 2 0 से a fx dx, ये कब होगा? when my function is even, और 0 when my function is odd. now function even है या odd है वो कैसे पता लगेगा? that is a very big challenge. for even and for odd we have two conditions. A function is even whenever we get f of minus x is equals to fx, and a function is odd whenever we get f of minus x is equals to minus fx. now let's see ये function कैसा है। यहाँ पे f of minus x क्या हो जाएगा बेटा? that is sin की power 7 minus x, so that is sin minus x कितना होता है? minus sin x, so minus sin x की whole power 7, 7 क्या है? एक odd power है, since it is a odd power we all know that जो minus है वो बाहर आ जाएगा, so minus sin 7x, सॉरी माइनस साइन की पावर 7x, सो दैट वुड बी माइनस fx. फंक्शन कैसा हुआ? ऐसा फंक्शन है, दैट मीन्स ऑड फंक्शन है, सिंस ऑड फंक्शन है आंसर क्या आ गया? 0, दैट्स इट। ये बहुत बार क्वेश्चन 1 मार्कर्स का क्वेश्चन है ये, सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेकन सीरियसली। द लास्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो द सेम कॉन्सेप्ट, ऑड और इवन, बिकॉज माइनस और प्लस का डिफरेंस है बस अपर लिमिट और लोअर लिमिट के अंदर। सो बेसिकली एम करो कि फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है। f of minus x, that is sine square minus x, so that would be basically minus sine square x, being यहाँ पे पावर में क्या है? 2 है, so बस कितना आएगा? sin 2x, that is your basically f of x. so f minus x is equals to f of x, which is a even function. even function के अंदर क्या था बच्चा? even function में that means we can just write our integral as 0 से pi/4 sin square x dx. now we have to solve it further on, since we know that sin square x, sorry not sin 2x, it is basically sin square x. I know ये सबको आता है बिकॉज ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ इस टाइप का विदाउट द पावर्स। sin square x that is equals to 1 minus cos 2x upon 2, बस इसको पुट कर दो। मैंने हमेशा एक्सप्लेन किया साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, cos 2x वाला जो फॉर्म होता है उस टर्म में लेके हमें सिंप्लीफाई करना है। सो दैट वुड बी इंटीग्रल 0 से pi/4 1 minus cos 2x dx, और इस 2 को हम ले जाएंगे बाहर, दैट इज 1/2 बाहर। इंटीग्रल करते हैं, सो 1/2 यहाँ पे आएगा x माइनस यहाँ पे क्या बनेगा? sin 2x upon 2, limit was 0 से pi/4, just keep the limit and see that what you are getting your answer as. so pi/4 minus यहाँ पे देखो sin 2, यहाँ कोने में लिख रही हूँ मैं, sin 2 into pi/4 that is sin pi/2, and what is sin pi/2? that is your 1, है ना? करेक्ट। so यहाँ पे कितना आएगा? sin pi/2 is basically 1, so we are left with 1/2 माइनस 0 का 0 हो गया, साइन 0 कितना होता है? 0, तो इसको छोड़ दो, तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास आंसर pi/8 माइनस pi/4, एंड येस दिस इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। जस्ट गिव मी अ मिनट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, आई जस्ट फॉरगेट वन थिंग, जब बेटा मैंने इसके लिमिट पुट किया तो यहाँ पे जब मैंने लिमिट चेंज किया 0 से pi/4 किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होना था, सो बेसिकली यहाँ से 2 कट जाता, सो आंसर वुड बी pi/4 minus 1/2, and yes this is the absolutely correct answer. I hope every concept for this video should be clear. Thank you so much for supporting me, for increasing the subscribers day by day. I'm very helpful, and
I'm very thankful to you people, I would say, that you people are supporting me so blindly that yes, I'm teaching a good matter. So beta, in the next chapter, in the next class, we are going to start with some of the AOI problem, और obviously वो भी आपका एकदम जनरेट होगा आपके प्रॉपरली CBSE पर्पज से. सो प्लीज़ उसको देखना, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना. थैंक यू सो मच क्लास. बाय बाय यू ऑल.